جی السلام علیکم. ہیلو, ایک کالر ہمارے پاس ہے, میں کالر ہوتا ہوں. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کی آواز میرے تک پہنچ رہی ہے, آپ فرمائیے, آپ کو کیا دریافت کرنا ہے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کی ٹی وی کی آواز کم کر لیجئے اور دریافت کریے کہ آپ کو کیا پوچھنا ہے. ہلو. جی ہیلو, آپ کی آواز آ رہی ہے, فرمائیے. ناظرین محترم, ہمارا جو سوال چل رہا تھا تقریباً سوال ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہی ہے. میں ذکر کر رہا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ کا میلاد منانا مستحب ہے. یہ اگر کوئی سعادت مند فرد اگر مناتا ہے تو واقعی اس کے ایمان میں تازگی کی علامت ہے, تازگی ہوتی ہے, باعث تازگی ہے. ضرور میلاد منانا چاہیے اور اس کا ایمانی تقاضا اور اس کا حبی تقاضا ہے کہ وہ میلاد کے موقع پر خوشی منائے اور اپنی اظہار محبت کرے. لیکن یہ یاد رکھے کہ میلاد کے عنوان سے جو جگہ جگہ نئے نئے کام کیے جا رہے ہیں, یہ ہوتا ہی یہی ہے کہ معاشرے کے اندر جب کوئی کام کسی امیر کے بغیر شروع ہوتا ہے تو اس کو مختلف جہتوں میں مختلف رنگ دے دیے جاتے ہیں اور آگے چل کر وہ عارضی رنگ ایک مستقل شکل اختیار کرتا ہے اور لوگ وہی عارضی رنگ کو مستقل شے اور حقیقت شے تصور کرنے لگتے ہیں اور جو اسے کرتا ہے اسے ہی صحیح آدمی اور جو انجام نہیں دیتا اسے غلط سمجھتے ہیں. اس کا مثال یہی ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تھا شکرانے کے طور پر, یعنی میلاد کے طور پر خوش ہونا اور شکرانہ ادا کرنا یہ ثابت ہے. لیکن آگے چل کر اس کے مختلف طریقے رائج ہوئے جس کے اندر بہت سارے طریقے فائدہ مند رہے, اچھے رہے, لیکن بعض طریقے قبیح بھی رہے. ایک انتہائی تاریخی واقعہ آپ کو اس ضمن میں سنانا چاہتا ہوں. حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے کہ اس زمانے میں بھی لوگ جلوس نکالا کرتے تھے اور جلوس میں عشق و محبت میں لوگ آگے بڑھ کر ایک غیر معمولی کام انجام دے دیے. وہ محبت کا نام دیتے ہوئے اپنے تصور سے ایک بہترین خوبصورت سا خاکہ بنائے اور اس کا نام رکھ دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے. نعوذ باللہ. اب پورے عشاقان رسول تھے, تقریباً لوگوں کے پاس علم نہیں تھا اور آج کے زمانے میں جس طریقے سے علم والوں کی بات کو جو علم نہیں ہے وہ لوگ جس طریقے سے ریجیکٹ کرتے وہ ہر زمانے میں پایا گیا. تو اس زمانے میں بھی یہی ہوا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ جلوس کے اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک تصویر رکھی ہے. وہ تصویر کو منسوب کیا جا رہا ہے کہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے. اسے لوگ عقیدت و احترام کے پھول چڑھا رہے ہیں. اللہ حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی دور رس نگاہوں سے دیکھا کہ اب تو بڑی شان و شوکت سے اسے رکھے ہیں اور فرضی تصویر بنائے ہیں, اگر اس کا انکار کر دے اور اسے ناجائز و حرام اگر قرار دے تو پھر لوگ انہیں برا بھلا کہیں گے اور انہیں ریجیکٹ کر دیں گے. انہوں نے بڑی مصلحت پسندانہ کام کیا اور فرمایا کہ یہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب تصویر ہے, لاؤ زمزم اور گلاب کے پانی سے اسے بہترین انداز سے غسل دیا اور جو ایک بڑے بہترین تھالے کے اندر رکھ کر کے غسل دیا اور فرمایا کہ یہ جو غسل دیا ہوا پانی ہے اسے تمام لوگ پی لو. اور پینے کے بعد فرمایا کہ کبھی ایسی جرت نہ کرو, وہ تصویر تو مٹ گئی اور وہ پانی کے اندر مل گئی, نسبت جو تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ہو یا نہ ہو اس نسبت کے طفیل میں اس کا مقام تو بڑھ گیا تھا. فوراً دھو دیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ خدارا ایسی تصویر کبھی نہ بناؤ, آئندہ چل کر وہ تصویر صحیح ہو یا غلط ہو دوست و دشمن ہر ایک کے ہاتھ میں آئے گی. کوئی ادب کرے گا تو کوئی بے حرمتی کرے گا, جگہ جگہ اس کی بے حرمتی ہوگی, لہذا تم ایسا نہ کرو. وہ دور بڑا اچھا تھا, علماء کی بات سنی جاتی تھی, لوگوں نے پھر ایسی جرت نہ کی. آج کے دور میں بھی مقتدر علماء کرام بزرگان دین جن کی لوگ مانتے ہیں مشائخ اور عظام کی ذمہ داری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھرپور انداز میں مخالفت بھی کر رہے ہیں. حضرت شیخ الجان
जामिया मुफ्ती खलील अहमद साहब शेखुल जामिया जामिया निजामिया ने अपने वजाहती बयान में तफसील से फरमाया कि वो तमाम चीजें जो आज नौजवान मीलादुन नबी के उन्वान से कर रहे हैं नाजायज है, ये मुनासिब नहीं है, ये गलत काम है, इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मुतासिर हो रही है। ऐसे हर आलिम दीन इसकी मुखालिफत करते हैं। याद रखें कि कोई आलिम इसकी तायीद नहीं करता। अवामुन नास से गुजारिश है कि बराए करम उलमा का एहतराम करे, इस मुनासिबत से उलमा की बात सुने, क्योंकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका इंतहाई अहम है। उनके साथ अदब और एहतराम का ताल्लुक अगर हो तो अल्लाह को मंजूर है। अगर जरी बराबर बेअदबी हो जाए तो रब्बुल आलमीन उसे नापसंद फरमाते हैं। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इरशाद फरमाइए। मैं रफीक बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी फरमाइए। ये मिलादुन नबी को जो लोग बोलते नहीं मनाना जिससे नहीं है नहीं गलत है बोलते हैं। मैं आपसे पहले ही अर्ज कर चुका कि प्रोग्राम के इब्तिदा में मीलादुन नबी के उन्वान से तफसीली गुफ्तगू हो चुकी है और इसके मुताल्लिक़ तफसीली जमात की लाइन के जी मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ कि कोई भी जमात से ताल्लुक रखने वाले हों, याद रखें कि अगर मुखालिफत होती है मीलाद की तो वो हकीकत मीलाद की मुखालिफत नहीं कर सकते। या तो उन्होंने मीलाद का मफहूम नहीं समझा, या तो मीलाद की रूह नहीं समझा, या समझे हैं तो ये जो फैला हुआ मीलाद का नया अंदाज है उस अंदाज की मुखालिफत कर रहे होंगे। मीलाद चूंकि कुरान से साबित है, क्योंकि अहादीस करीमा से साबित है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। लफ्ज नया है लेकिन इसके माना और मफहूम पुराने हैं, ये बिल्कुल जायज है और दुरुस्त है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जी फरमाइए। जी हमारी सवाल ये है कि के जो सीने मुबारक छाप हुआ था जी, तो वो कई बार हुआ है? जी जी और आपका सवाल क्या है? बस हमारा सवाल ये था कि जो सीने मुबारक जो छाप हुआ था एक बार तो उसमें जब वो मिराज पर हुआ था। जी जी मैं आपके सामने अभी जिक्र करूँ। अल्लाह के हबीब सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शक़्क़ सदर के वाक़े के मुताल्लिक़ फरमाते हैं कि 4 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने मुबारक को शक किया गया। बचपन में ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को शक किया गया। 4 साल के होने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को शक किया गया। बहरहाल सीरत की किताबों में इसकी तफसील आपको मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए आपका। जी जनाब मैं मोहम्मद याद अली खान बोल रहा हूँ। जी जी फरमाइए। जनाब आज इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हमारे एक दोस्त का फोन आया था। जी जी मैं ईद मिलादुन नबी मुबारक कहा था उनसे। जी तो जब वो फरमाने लगे कि भाई आज वफात का दिन भी है, ये क्यों करते हैं, क्यों बताए मुझे। जी जी मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये वफात का दिन है, तो मिलाद का दिन तो हम तो खुशी से मनाते ही मनाते हैं, मगर वो ऐसा क्यों बोले मैं समझ नहीं पाया। अगर आप मुझे समझा सके तो मेहरबानी आपकी। जी नाज़रीन मुहतरम, ने इससे पहले भी हमारे अपने प्रोग्राम के अंदर इस बात की वजाहत किया। बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का दिन भी चूंकि वाकई 12 रबीउल मुनव्वर है और आपकी पैदाइश का दिन भी 12 रबीउल मुनव्वर है, लेकिन वफ़ात के दिन के आप क्यों गम नहीं मनाते, खुशी क्यों मनाते? हम शरीयत के पाबंद है, याद रख लें, शरीयत इस्लामिया के हम पाबंद है। शरीयत कहती है कि गम मनाने के लिए सिर्फ 3 दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इजाजत दिया है। किसी भी चीज की गम अगर आपको मनाना है किसी की मौत पर तो सिर्फ 3 दिन मनाई जा सकती है। और औरत अगर किसी की हो, शौहर का इंतकाल हो, तो उसे सोग मनाने का हुक्म है कि वो 4 महीने 10 दिन सोग मनाएगी। ये आम मौतों का जिक्र हुआ। अगर वो आम हिसाब से अगर पूछते हैं तो उन्हें फरमा दिया, आप कह दे कि 3 दिन ही का हुक्म है, इसके अलावा गम नहीं मना सकते। और अब रही बात खुशी मनाने की, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हयात तय्यबा, आपकी विलादत बासआरत पूरी कायनात के लिए क़ियामत तक रहमत है। अगर आपकी रहमत खुदा न खासा रुक जाए तो हम भी मीलाद बनाना रोक देंगे। मीलाद हमेशा इसलिए मनाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआरत सुबह क़ियामत तक रहमत है, पूरी कायनात के लिए रहमत है। इस वजह से आपकी पैदाइश के जो फैजान है वो आम है, और जो आपकी वफात का जो गम था वो सहाबे किराम तक महदूद और मखसूस था। और वाकई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही ने ये फलसफा बयान फरमा दिया कि इस दुनिया के अंदर हर ज़ी नफ्स को, हर सांस लेने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चंद दिन के बाद, मुकर्ररा मिक़दार के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुनिया से पर्दा फरमा देते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दुनिया से पर्दा फरमाए हैं। हमें आपकी मिलाद पर खुशी मनाना ये हमारा ईमानी फरीज़ा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी फरमाइए, आप क्या पूछना? जी वो एक्चुअली थोड़े लोग घर पे खीर पूरियाँ ऐसे बनाते ना, जी, तो वो खीर पूरियाँ बनाना मुनासिब है या नहीं है? मेरी बात देखिए मेरी बहन, ये मुनासिब है या नहीं है, ये सब चीज़ें ये आप बेहतर जानते हैं। शरीयत इस्लामिया के नुक्ते नज़र से अगर आप पूछा जाए तो हर हलाल चीज़ को हर दिन बनाया जा सकता है और खाया जा सकता है। हलाल चीज़ है खीर पूरी, इसके अंदर कोई रुकावट नहीं, बराबर बना सकते हैं और खा सकते हैं। ये हलाल चीज़ है, अच्छी रज़ा है, अगर आपको पसंद है तो आप बनाइए और खाइए। मिलादुन नबी एक खुशी का दिन है, खुशी के तौर पर अगर आप बनाते हैं तो ये आपके लिए बड़ी सआदतमंदी की बात है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जी फरमाइए। जी, जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स नहीं दिखता था, जी जैसा अबर का एक टुकड़ा है उसके जी सुनिए, जी जी ये सही है या नहीं उसके। और जैसा कि अपन ये जो बारहवीं के झंडे जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिख के लगाते हैं, जी जो घरों पे लगे हुए रहते हैं, जी, उसका अक्स नीचे गिरता है, जैसा पैरों से कुंडले जाते हैं या गाड़ियों पे बच्चे, उसकी बेरुखी हो रही, उसके लिए आप कुछ बताएंगे क्या कि जो बेरुखी हो रही है तो उसको कैसे रोकना? तो एक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का अक्स जो है रोड पे पड़ रहा, जी कुंडले चले आ रहे। जी, मैं जो नारे तकबीर बोल के हो रहे हैं वो ठीक है? मैं भी बताऊं। एक सवाल हमारे कॉलर का यह था कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स जमीन पर नहीं पड़ता था। ये मुतअद्दिद अहादीस करीमा और सीरत की किताबों से साबित है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया जमीन पर नहीं पड़ता था। इसकी चाहे कोई भी वजह हो, इसकी वजह यह भी हो सकती है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नूर बनाया था। उसकी वजह यह भी हो सकती है कि आपके सर अक़दस के ऊपर अबर साया किया होता था। किसी भी वजह से अहादीस करीमा में यह भी जिक्र आता है और वो भी जिक्र आता है। बहरहाल ये बात साबित शुदा है कि आपके जिस्म अथर का साया नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी फरमाइए। हाँ हजरत, ये मिलादुन नबी तो मनाना खुशी की बात है जी, लेकिन आजकल जो हमारे मुसलमान भाई रोड पे जो नाच गा रहे हैं, मैं आपको पहले ही जिक्र किया कि इस उन्वान से तफसीली तौर पर जवाबात दे दिए गए हैं। तफसीली तौर पर पूरा तफसीली जवाब हो चुका है। इसके अलावा कोई अगर सवाल आप पूछना चाह रहे हैं तो सवाल फरमाएं। हाँ, तो इसमें जो है आप उम्मत को क्या पैगाम देंगे? मैं इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के आखिर में उम्मत को जो हमारे मुसलमान भाई जो इस तरीके से दीवानगी के तरीके से, मैं 12 हमारे कॉलर से दरखास्त कर रहा हूं कि यहाँ मुख्तसर टाइम बड़ा मुख्तसर है। आप तमाम हजरात इस बात को मद्देनजर रखें कि जो सवाल किया जा चुका है 12 उसे न करें, उस सवाल को रखते हुए कोई दूसरे मालूमाती सवाल करें। मेरे एक भाई ने बड़ा अच्छा सवाल ये किया कि झंडियां लगाते हैं उस पर कलीमा तौहीद लिखा जाता है, वो जब नीचे पड़ता है, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें अतहर के साये को नीचे पड़ने से महफूज फरमाया, तो अब उम्मतियों के हाथ में यहाँ पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक है, आपका कलीमा है, तो हमें भी वैसे ही एहतराम करने चाहिए। वाकई ये जज्बे काबिल सताइश है, वाकई ऐसा ही होनी चाहिए। कहीं हम अपने अंदर अंदाजा करें कि शैतान इश्क नबी और मोहब्बत रसूल के ही बहाने से कहीं हमसे बेअदबियां न करा रहा हो, यह ऐन मुमकिन है। शैतान की चाहत तो यह है कि बंदा किसी भी दर्जे में अल्लाह की निगाह से नीचे गिर जाए, और अल्लाह की निगाह से गिरने के लिए सबसे बेहतरीन जरिया यह है कि नबी की शान में बेअदबी करा दी जाए, चाहे मोहब्बत रसूल के नाम से हो, चाहे गुस्ताखी रसूल के नाम से हो। तो अब अगर कोई गुस्ताखी रसूल के नाम से बेअदबी करता है तब भी वो भी मजमूम चीज है, कोई मोहब्बत रसूल के उन्वान से बेअदबी करता है तब भी वो काबिल गिरफ्त चीज है। याद रख लें कि मैं आखिर में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से जो आपको मैसेज देना चाहता हूं, जैसे कि हमारे कॉलर से हमसे दरखास्त की, वो ये कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पूरी इंसानियत के लिए एक इंतहाई इनकलाब आफरीन दिन है। आज के दिन की सही फजीलत, आज के दिन के सही फायदा और इस्तिफादा यही है कि आज के दिन हम वो तमाम रूहानी चीजों को हमारे अंदर महसूस करें जो आज से 1400 साल कबल इस पूरी कायनात ने अपने अंदर महसूस किया था, नूरानियत को महसूस किया था। जगह जगह नूरानियत महसूस हुई थी, नूरानियत के झंडे महसूस हुए थे। हजरत आमिना को मुल्क शाम नजर आने लग गया था और पूरी कायनात के अंदर नूर ही नूर फैल गया था। जुल्मत कदों के अंदर जलने वाली आग बुझ गई थी और बुत
अपने मुंह औंधे गिर गए थे, किसी ने जाकर के नहीं गिराया था, तो आज भी मीलाद के अंदर वही ताकत है, वही पावर है, वही सलाहियत है। शर्त यह है कि उम्मत जो इस वक्त यहां मौजूद है, जो इस वक्त उसका मुशाहिदा करने वाली है, जो इस वक्त अपनी जिंदगियों में इंप्लीमेंट करने वाली है, उन्हें अपने आप से इन तमाम नतीजों को अख्ज़ करने, महसूस करने, इंप्लीमेंट करने और उसको रूबा अमल लाने और उसको इस्तेमाल करने का सलीका हो और तरीका हो। उन्हें मालूम हो कि हमारे ऊपर फरीजा क्या है, हमारे ऊपर सिर्फ जज्बाती नारे लगा लेना फरीजा है या फिर मीलाद के तमाम फजाइल और कमालात को अख्ज़ कर कर उसको सही इस्तेमाल कर कर दुनिया के अंदर ईमान और इस्लाम की रोशनी को फैला देना मकसद है। याद रखें, मीलाद सुबह क़यामत तक सबसे ज्यादा इनकलाब आफरीन दिन है अगर मुसलमान उसे सही तौर पर इस्तेमाल करे। चूंकि अल्लाह के हबीब सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम की मुबारक हयात तय्यबा पूरी इंसानियत के लिए मशाल राह है। आप उसे महदूद न करें। बराए करम मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ तमाम नौजवानों से, वो उलमाए किराम से, वो मशाइख़ उज़्ज़ाम से और दीगर लोगों से कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को कोई अपने इलाके तक महदूद तसव्वुर न करे। पूरी कायनात के लिए महदूद, पूरी कायनात के मुहीत है आपकी ज़ात। कायनात का हर फर्द बशर आपका गुलाम है, हर एक को इख्तियार है। आप उनकी तस्वीर ऐसी पेश करें जैसे पूरी कायनात उसे एक्सेप्ट कर सके। आपने जो तस्वीर मीलाद के उन्वान से पूरे पुराने शहर के अंदर और पूरे शहर के अंदर पेश की है, खुदा की कसम खा करके कह सकते हैं कि कोई संजीदा मिजाज मुसलमान भी इसे कबूल नहीं करता, तो फिर कोई दूसरा इसे कैसे कबूल करेंगे। अगर आप मीलाद के उन्वान से ऐसी हरकतें करते हैं जिसके जरिए लोग नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अत्हर से नऊज़ुबिल्लाह नावाकिफियत की वजह से मुतनफ़िर हो रहे हैं, तो इस तनफ़ुर की वजह आप बन रहे हैं, आपका यह अमल बन रहा है। आपके लिए तो काम यह है कि जो लोग दूर हो रहे हैं उन्हें करीब कर लें, उन्हें करीब कर ले नबी की ज़ात के, उन्हें बिल्कुल मुनासिबत पैदा कर दे नबी की ज़ात से, ना कि अपने अमल और अपने ख्वाहिशात के जरिए ये काम अंजाम दे। आखिरी बात समाप्त कर ले, मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले सुन्नत वल जमात इसे इबादत समझ के अंजाम देते हैं, इबादत समझकर। अब जितने हजरात जुलूस वगैरह निकालते हैं, मैं उनसे दरखास्त करता हूं, सवाल ये करता हूं कि ये मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इबादत है या फिर शौक है। अगर इबादत है तो इबादत इस अंदाज से नहीं हुआ करती, इबादत इस दर्जे से, इस अंदाज से, इस लिहाज से नहीं हुआ करती। इबादत के अंदर रिक्कत होती है, खुशू होता है, खुजू होता है और जिक्र होता है, संजीदगी के साथ होता है। 20 लाख से 25 लाख 40 लाख का इज्तिमा हज में जमा होता है इबादत के लिए, खामोश जिक्र तहलील के साथ जाता है। और फिर फतेह मक्का का जुलूस ये भी इबादत था, खामोश जिक्र के साथ चल रहा था। और अगर ये इबादत नहीं, अगर आपका शौक है तो समझ ले कि इस्लाम में शौक की, आपको शौक नबी की जात के साथ मिलाकर के अंजाम देने की कोई इजाजत नहीं है। पूरे अहले सुन्नत का मुत्तफिका फैसला, अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफिका बात, पूरी जिम्मेदारी से आप हजरात के सामने जिक्र करना चाहता हूं कि अगर आप शौक पूरा करना चाहते हैं तो इंडिविजुअल अपने नाम से कर ले, नबी की जात के साथ उसे मंसूब न करे। और जुलूस निकालने के आदाब याद रखें कि मदीने मुनव्वरा से मक्के मुकर्रमा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुलूस निकाल रहे थे, जा रहा था जुलूस, फतेह मक्का के लिए 10,000 की फौज है, अल्लाह के नबी अमीर थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तमाम आवाम बाहर आ जाती है तो जोश और जज्बे में बेकाबू हो जाती है, तो ऐसे वक्त एक अमीर का होना जरूरी है जिसकी तमाम लोग ताबेदारी करें। हजरत साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहां पर मौजूद है और हजरत साद इब्न मुआज़ या साद इब्न रबिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, मुझे नाम में कुछ कंफ्यूजन है, वो वहां पर है। अचानक इस गुस्से के आलम में, जज्बे के आलम में मक्का फतह हो रहा है। दुश्मन जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से उनकी जुल्म और सितम की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले थे, वो दुश्मन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने है। तो इस वक्त वो सहाबी जिनके हाथ में वो कमांडर थे एक मोर्चे के, फरमाते हैं कि अल-यौम यौमुल मलहमा, अल-यौम यौमुल मलहमा, आज कत्ल गारतगिरी का दिन है, आज बदला लेने का दिन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के खिलाफ था, मिशन के खिलाफ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि क्या किया जाए, फौरन सहाबा को भेजा गया और उनका झंडा उनके हाथ में से ले लिया गया, उनके साहिबजादे को दे दिया गया।
اگر اس درجے کمان آپ کو جلوسیوں کے اگر اوپر ہو، جو لوگ ذمہ دار ہیں میں ان سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ امیر ہو اور آپ کے تابع رہنے والے تمام لوگ، تمام جلوسیاں جسے آپ شوق دلا کر کے گھر سے باہر نکلے ہیں، اگر آپ کو اتنا کمان ہو کہ بے ادبی اور بدتمیزی کرنے والے کو آپ سزا دے سکتے ہو اور اس کے ہاتھ میں سے جھنڈا کھینچ سکتے ہو، اسے تابع کر سکتے ہیں، تو آپ کو مبارک ہے یہ امارت۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر یاد رکھیں کہ آپ کو جلوس نکالنے کی شرعاً کوئی اجازت نہیں ہے، کیونکہ انسان جب باہر نکلتا ہے تو پھر وہ جوش و جذبے کے اندر بے قابو ہو جاتا ہے۔ بے قابو ہونے کے بعد آپ اگر یہ کہہ دیں کہ میں اس کا ذمہ دار نہ ہوں، تو یاد رکھیں کہ پوری شریعت اسلامیہ کو اس سے مجروح ہوتی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں ہر قسم کا جواب اور ہر قسم کی دلیل ملتی ہے۔ اگر آپ جلوس نکالنا چاہتے ہیں تو فتح مکہ کی طرح جلوس نکالیں، اور آپ امیر ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فخر کے ساتھ پھول پہنتے ہوئے بڑے نعرے لگاتے ہوئے جائیں۔ فتح مکہ کے فاتح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوس نکال رہے ہیں، سب سے زیادہ خوشی کا موقع ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہے، آپ اپنے چہرے کو جھکائے ہوئے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنا جھکائے ہوئے ہیں کہ اونٹ کی کوہار آپ کو لگنے والی ہے، زار و قطار رو رہے ہیں تواضع انکساری سے، اور پوری انسانیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ آپ جلوس نکالیں تو اتنے باادب ہو کر، خشوع و خضوع کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، روتے ہوئے، اگر خود نکالنے والے امیر کا یہ عالم ہوگا تو اس کی کیفیت پورے جلوسیوں کے اوپر ہوگی، اور وہ بھی اس انداز سے نکالیں گے۔ یہ انداز سے اگر جلوس نکلے گا تو وہ جلوس انقلابی رہے گا۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ جلوس امت مسلمہ کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ نقصان دہ ہے۔ درخواست ہے کہ آج جو نقصان ہوا، پورے اخبار اور پورے میڈیا والوں نے دیکھا ہے کہ پورے شہر حیدرآباد کے اندر کل شام سے لے کر آج صبح تک لوگ ڈی جے گانے، طرح طرح سے مرغوں کو لڑانا اور ہر قسم کے تماشے کیے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس کی پوری ذمہ داری یہ عوام نے کی ہے، اور عوام کے کرنے کی پوری ذمہ داری ان حضرات کے اوپر ہوتی ہے جو شوق دلا دلا کر گھر سے باہر نکالے۔ اور جو ربیع الاول کا مہینہ آج سے پہلے نبی کے فضائل کا مہینہ ہوا کرتا تھا، نبی کی سیرت کا مہینہ ہوا کرتا تھا، شیطان نے ایسی چال چلا کہ آگے جا کر ہمارے مقررین فضیلت کی جگہ صرف رد کرنے میں رہ گئے، اور اب جا کر فضیلت محمدی کے بجائے صرف اور صرف جلوس کو نکالنے کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں۔ اس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہمارے جلسے کے اندر سے ختم ہو گئے۔ خدا را شیطان کی اس چال کو سمجھے، اسے کوئی بڑا رنگ نہ دے، بلکہ اس کے اندر سدھار کی کوشش کریں، اور آئندہ سال کے لیے ہم پلاننگ کریں 6 مہینے پہلے سے، اور ویل پلان ہو کر باادب جلوس نکال سکتے ہیں تو نکالیں، ورنہ اس کو اپنے آپ میں کنٹرول کر کے روک دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔